ضلع باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ ISPR کے مطابق 2 سیکیورٹی اہلکار دفاع وطن پر قربان ہو گئے۔ مارے جانے والے دہشت گرد سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف جاوید بلوچ سے۔ جاوید، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں ویس ضلع باجوڑ کے علاقے میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ 15 اور 16 نومبر کی درمیانی رات کو یہ واقعہ ہوا۔ ISPR نے بتایا ہے کہ اس واقعے میں جو ہے ہمارا 2 جوان شہید ہوئے ہیں، جبکہ ایک دہشت گرد جو ہے مارا گیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں اویس 33 سالہ نائک تاج محمد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 30 سالہ نائک امتیاز خان بھی انہوں نے بھی اپنی جان قربان کی وطن کے دفاع کے لیے۔ دہشت گرد سے بھاری مقدار میں جو ہے اسلحہ برآمد کیا گیا۔ یہ دہشت گرد مختلف وارداتوں میں ملوث تھا، جس میں دہشت گردی کی واردات تھیں اور لوگوں کو اغوا کرنے کی بھی وارداتیں تھیں۔ بہت شکریہ جاوید بلوچ آپ کا۔ بس بہت ہو گیا۔ عمران خان کا عمر ظہور کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ گزشتہ روز ایک مشہور فراڈیے بین الاقوامی مجرم کو ان کے خلاف تیار کیا گیا۔ بے بنیاد کہانی کے ذریعے بہتان تراشی کی گئی۔ وکلاء سے اس معاملے پر بات کی ہے۔ پاکستان ہی نہیں، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں بھی مقدمہ چلاؤں گا۔ تحائف اسلام آباد میں فروخت کیے، رسیدیں توشہ خانہ میں موجود ہیں۔ غلط کام کرنے کے لیے بھی عقل ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے توشہ خانہ اٹھایا ہوا ہے۔ میرے وکیل نے ایک چیز کا جواب دیا، رسید وہ تو پڑی ہوئی ہے توشہ خانہ کے اندر۔ کل انہوں نے ایک فراڈ کو پکڑا، یعنی اگر آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو اس میں بھی کوئی عقل ہونی چاہیے۔ انہوں نے بیٹھ کے جس آدمی کو لے کے آئے، وہ سوشل میڈیا نے سارا بتا دیا کہ وہ ایک بھاگا ہوا ہے ناروے سے۔ میں نے وکیل سے بھی بات کر دی، میں اس کے اوپر لندن میں کیس کروں گا۔ پاکستان کے اندر حقیقی آزادی نہیں، انصاف دیں گے ہی تو قوم آزاد ہوگی۔ عمران خان نے اپنے فائدے کے لیے توشہ خانہ کے قانون میں تبدیلی کی۔ جو پیسے ڈکلیئر کیے وہ کیسے آئے، کب اور کیسے ٹرانسفر ہوئے، جواب تو دینا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عمران خان پر الزامات اور سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کہا عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کی کرپشن کا معاملہ دب جائے۔ عمران خان عدالت میں جائے تاکہ سارا ریکارڈ عوام کے سامنے آئے۔ سعودی عربیہ کے ولی عہد اور وزیر اعظم سے وہ جو ہے دی گئی اونچی گھڑی تحفے کے طور پہ رولز اینڈ ریگولیشنز نے ان کو بھی مینیپولیٹ کیا۔ کبھی 20% کر دیا جب خود لینا تھا، کبھی 50% کر دیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سے انہوں نے پیسے لیے اور جب ڈپازٹ کرائے جو ہے حکومت کے خزانے میں جو پیسے انہوں نے ڈپازٹ کرائے، ان کی ڈیٹس کیا ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں مقدمہ کروں گا۔ میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ مقدمہ کریں، عدالت میں جائیں، سارے کا سارا ریکارڈ سامنے آئے۔ گھڑی بیچنے کے معاملے پر عمران خان PDM رہنماؤں کے نشانے پر آ گئے۔ مریم نواز نے کہا کہ دوسروں کو چور کہنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا۔ عمران خان ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، گھڑی کس کو بیچی نام بتاؤ، رسیدیں نکالو۔ قمر زمان کارا نے کہا کہ عمران خان نے توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر ملکی وقار کا مذاق اڑایا۔ شرجیل میمن کے مطابق عمران خان نے فرح گوگی نامی خاتون کے ذریعے گھڑی کو باہر فروخت کیا۔ گھڑی بیچی، منی لانڈرنگ بھی ہوئی۔ PDM رہنماؤں نے کپتان کو نشانے پر لے لیا، کئی سوال اٹھا دیے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا، عمران خان ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، رسیدیں نکالو، گھڑی کس کو بیچی نام بتاؤ، پیسہ پاکستان کیسے منگوایا۔ قمر زمان کائرہ بولے، عمران خان بتائیں ان کے پاس تحفے خریدنے کے لیے 2 کروڑ روپے کہاں سے آئے۔ آپ بڑے ذمہ دار اور بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، آپ پابند تھے کہ جس سال آپ نے یہ تحفے خریدے یہ آپ کا اثاثہ بن گیا۔ 2 کام آپ نے کرنے تھے، کہ آپ نے یہ بتانا تھا کہ اس تحفے خریدنے کے لیے جو پیسہ بقول ان کے 2 کروڑ روپیہ وہ آپ کے پاس وائٹ منی تھی۔ حمزہ شہباز شریف نے کہا عمران نیازی نے گھڑی نہیں پاکستان کی عزت اور وقار کا سودا کیا۔ شرجیل میمن کے مطابق فرح گوگی نے 45 کروڑ کی گھڑی بیچی۔ سوال یہ ہے پیسے پاکستان میں کیسے آئے۔ اس شخص نے 45 کروڑ میں وہ گھڑی بیچی اور کل وہ بات سامنے آ گئی کہ وہ گھڑی کون لے کے گئی تھی۔ جیسے عمران خان کی رجیم چینج ہوئی تو پہلی فرصت میں پہلی فلائٹ اس خاتون نے پکڑی اور اس ملک چھوڑ کے چلی گئی۔ ہیرو والی گھڑی کی قیمت 1 ارب روپے سے زائد ہے۔ نون لیگی رہنما عطا تارڑ کا دعویٰ، یہ $12 ملین کی گھڑی ہے۔ فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ یہ گھڑی عمران نیازی صاحب نے خریدی تھی جرم مانا۔ کتنے کی خریدی؟ 2 کروڑ کی۔
फरागोगी दुबई जाती है, 35 करोड़ में इस घड़ी को बेचती है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा, सरकारी सादिक और अमीन मुसल्लमा झूठा होने के बाद घड़ी चोर भी साबित हो चुका है। पाकिस्तान की सियासत में सऊदी बादशाह की घड़ी के चर्चे। इमरान खान ने तोहफे में मिली घड़ी कहां पर बेची, कितने में बेची, सवालात जन्म लेने लगे। अवामी हलकों में भी चहमगोइयां जारी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्की सियासत में घड़ी का शोर। सऊदी बादशाह से मिलने वाली घड़ी कहां बेची, कितने में बेची। कीमती नायाब घड़ी पाकिस्तान में फरोख्त हुई या दुबई में। तहरीक इंसाफ और हुकूमती रहनुमाओं के दावों से सूरत हाल गैर वाज़ेह। इमरान खान से तोशा खाना के तहफ़ खरीदने वाले उमर फारूक ज़हूर के दावों के बाद कई सवालात ने जन्म ले लिया। अवामी हलकों में चहमगोइयां। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के जरिए इमरान खान ने क्यों इन तहफ़ को $20 लाख कैश में बेचा। इमरान खान ने ये तहफ़ उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे तो ये उनके पास कैसे पहुँचे। तहफ़ उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे गए तो किसको बेचे गए। तहफ़ बेचकर पैसे वापस पाकिस्तान लाए गए या नहीं। लाए गए तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ है। पैसे वापस नहीं लाए गए तो इतनी बड़ी रकम कहाँ गई। 28 करोड़ रुपए में तहफ़ बेचकर महज 5 करोड़ 80 लाख रुपए की फरोख्त क्यों दिखाई गई। क्या टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया गया या मनी ट्रेल छुपाने के लिए ऐसा किया गया। इमरान खान का कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर अब हम पीछे हट गए हैं, पीछे बैठकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। नवाज शरीफ उसे आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं जो उसकी चोरी का दिफा करे। कोई आर्मी चीफ इदारे, रियासत और अवाम की आवाज़ के खिलाफ नहीं जाएगा। चोरों का टोला इस अहम तरीन तैनाती के लिए अहल नहीं। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए PTI सरबराह ने कहा कि अमरीका से लड़ाई नहीं, बेहतर ताल्लुकात चाहता हूँ। तुम होते कौन हो आर्मी चीफ की तैनाती पर बात करने वाले। मरियम औरंगजेब का कप्तान को जवाब। घड़ी 2 करोड़ में खरीदी और 28 करोड़ में बेचती। इमरान खान बताएं घड़ी के पैसे पाकिस्तान कौन लाया, कैसे लाया। चोरी के हैंडलर्स फराह गोगी और शहजाद अकबर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। घड़ी चोरी पर अदालत जाने की तारीख, रसीद भी कौम को दिखाएं। वज़ीर इत्तलात ने चैलेंज कर दिया। वेलकम एक्चेयर में नैब आफ्ताब सुल्तान का BRT और मालम जब्बा समेत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दीगर मालियाती स्कैंडल्स के केसेस दोबारा खुलवाने का ऐलान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ये केसेस बंद कर दिए गए थे, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर दोबारा खोले हैं। कोशिश करेंगे हर महीने के अंदर केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे साकिब सईद से। साकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ये खैबर पख्तूनख्वा में जो करप्शन के मुख्तलिफ केसेस थे उस हवाले से आज ब्रीफिंग की चेयरमैन नैब की और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने उनको बुलाया था ताकि उनको ब्रीफिंग दी जा सके। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि BRT, बिलियन ट्री, सुनामी, मालम जब्बा, खैबर बैंक और हेलीकॉप्टर स्कैंडल जो है इस पर क्या पेशरफ्त हुई। हमें ऐसा लग रहा है कि ये पेशरफ्त जो है वो स्लो और सुस्त हो रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि मालम जब्बा और BRT के जो 2 केसेस हैं ये मुकम्मल तौर पर बंद थे, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर हमने इनको दोबारा खोला और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन पर जल्दी काम हो सके। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा गलत काम हो जो जिस पर हमें बाद में पछतावा हो। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इन तमाम केसेस, ये जो केसेस हैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम हमारे पास 6 महीने का वक्त हो। तो मालम जब्बा और BRT के जो केसेस हैं उन पर उन्होंने कहा कि ये 6 महीने का वक्त इन पर लगेगा और उसके बाद ही हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दोबारा ये बता सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वेलकम है। खलील मादल शेख का कहना है कि MQM अब 3 में है न 13 में। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब नया दौर आ चुका है। आजकल की मोहब्बत पैसों की मोहब्बत है जिसकी वजह से सिंध बर्बादी में है। वो आजकल हीर रांझे की मोहब्बतें चल रही हैं MQM पीपल्स पार्टी की, ठीक है ना। लेकिन वो मोहब्बत आपको पता है दौर नया आ चुका है। इस दौर में सब चीज़ इसकी होगी तो आजकल इनकी हीर रांझे की मोहब्बत भी पैसों पे चल रही है। MQM और पीपल्स पार्टी की इसी पे डिपेंड करती है, क्या दोगे क्या लोगे। दिफाई साजो सामान की 11वीं 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी नुमाइश आइडियाज़ कराची एक्सपो सेंटर में जारी है। नुमाइश में जदीद हथियारों के साथ साथ मकामी तौर पर तैयार करदा ड्रोन्स भी पेश किए जा रहे हैं। दूसरे दिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानेंगे शफकत अजीज़ की इस रिपोर्ट में।
मुल्क की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का आगाज। दिफाई नुमाइश में असलहे की सनत से मुताल्लिक मुकामी और गैर मुकामी कंपनियों और डीलर्स को अपनी मसनूआत और खिदमात को उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तैयार करदा ड्रोन्स में भी गैर मुल्की वफूद दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारी अबाबील सीरीज के 3 ड्रोन्स हैं हमारे पास, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 5 to 10 kg की है, जिससे हम काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। कुछ हमारे पास सर्विलेंस के भी हैं। इसके अलावा मोटर ड्रॉप्स जो एनिमी की क्रॉस द बॉर्डर हो सकती है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटी टैंक और एंटी व्हीकल ड्रोन्स भी है। एक्सपो सेंटर कराची में पहली बार तुर्किया की दिफाई साजो सामान के लिए 2 हॉल मुख्तस किए गए हैं। We give really importance to Pakistan because we really feel like we are at home, so it's like our land. We are here together with our brothers. दिफाई नुमाइश आइडियाज में मुकामी तौर पर तैयार होने वाले जंगी हथियार, फिजाई जंग के लिए तैयार करदा JF-17 थंडर्ड के अलावा लड़ाका पायलट्स की तरबियत के लिए मुश्ताक, सुपर मुश्ताक और K-8 तैयारे भी नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद नुमान खान के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज़ कराची। वेलकम है। कराची में जगह जगह खुदाई, गड्ढे और टूटी सड़कों से ट्रैफिक जैम के मसाइल बढ़ने लगे हैं। 3 हट्टी पर सड़कों की खस्ताहाली और सीवरेज और दीगर लाइंस डालने के लिए की जाने वाली खुदाई शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का बायस बनी हुई है। रिपोर्ट करेंगी मूना सिद्दीकी। ये है एशिया की सबसे बड़ी फ्लावर मार्केट। कराची 3 हट्टी की मसरूफ तरीन सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने का बायस बने हुए हैं। सीवरेज की लाइनें बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढों का काम मुकम्मल ना होने से शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। मिनटों का सफर घंटों में तय किया जाने लगा। वो जगह जगह खड्डे खोद रखे, दौड़नी सही नहीं कर रहे, पानी भर भर के तंग आ गए। खड्डे खोद के छोड़ देते हैं और यहाँ की मिट्टी सारा दिन, हम यहाँ के रिहायशी हैं, तकरीबन 90% जो है ना लोग दमे के मरीज हो गए ये मिट्टी से। पूरी रात दिन सुकून में नहीं गुजरता, ये इन खड्डों की वजह से, रोड की वजह से। शहरी परेशान, जबकि नशेई अफराद गड्ढों से सरिये निकालने में मसरूफ हैं। हजकोले खाती ट्रैफिक और गाड़ियों की लंबी कतारें और सड़कों की बदहाली इंतजामिया की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन जमशेद अली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। इनकलाब के लिए लड़ता रहूंगा, खामोशी से घर नहीं बैठूंगा, तब्दीली की जंग जारी रहेगी, मुल्क का खोया हुआ वकार बहाल करूंगा। मौजूदा हुकूमत मुल्क को मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है, मुआशी तौर पर भी नुकसान हो रहा है। ये बयान किस सियासी रहनुमा ने दिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बड़ा लीडर, बड़े बयानात, मुल्क को आगे लेकर जाने का अज़्म, तब्दीली लाने के लिए आज भी मुतहर्रिक। In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। फेडरल इलेक्शन कमेटी में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो खुद को अमरीकी सदारत के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं। हमारे मुल्क को हमारी आंखों के सामने बर्बाद किया जा रहा है, अब अमरीका कमबैक करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात में फतह हासिल की थी, अलबत्ता 2020 में उन्हें बाइडेन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदोनवा में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में भी बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।